Hello student, welcome back to my channel. So in today's video we are going to cover very important topic from SYVCOM, that is called Weismann-Peacock hypothesis. So what the concept wants to say, that we'll understand one by one. First of all, introduction. So Weismann-Peacock hypothesis was first time put forward by British economists Jack Weismann and Alan T. Peacock, and their study is based on public expenditure in UK for the period 1891 to 1995. So 1891 to 1995. Then they conducted their study based on Wagner's law. So Weismann and Peacock hypothesis first time introduced by economists Jack Weismann and Alan T. Peacock, and whatever study they have conducted, their base is Wagner's law. Now what is Wagner's law? About it already I have uploaded video, but in short we'll understand that according to Wagner's law, public expenditure increase continuously and smoothly as state activity increase. So, on the basis of this study, Weismann and Peacock explain that how public expenditure take place. Then, statement of Weismann and Peacock hypothesis. According to Weismann and Peacock, the increase in public expenditure does not follow smooth and continuous trend, but the increase take place in a step-like manner. So, according to Weismann and Peacock hypothesis, public expenditure never increase in a smooth and continuous way. It is always increase like step-like manner. जैसे कि वाइजमैन और पिकॉक का ये कहना है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर कभी भी कंटिन्यूसली नहीं बढ़ता है, वो स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज होता है. सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन वैगनर लॉ एंड वाइजमैन एंड पिकॉक हाइपोथेसिस. अकॉर्डिंग टू वैगनर लॉ कि पब्लिक एक्सपेंडिचर कंटिन्यूसली और स्मूथली बढ़ता है, और वाइजमैन और पिकॉक हाइपोथेसिस के हिसाब से पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑलवेज इंक्रीज इन स्टेप लाइक मैनर. देन टू एक्सप्लेन दिस हाइपोथेसिस, Weismann and Peacock, they have undertaken three concepts. These are following. Number one is displacement effect. Number two is tax tolerance and inspection effect. And number third is concentration effect. So, what the displacement effect wants to say? Displacement effect का मतलब क्या होता है? So, see, as we know very well, we are suffering from various emergency period. सो जब भी हमारी कंट्री में कोई वॉर होती है, और वी कैन से वेन एवर वॉर पीरियड टुक प्लेस या एमरजेंसी पीरियड टुक प्लेस, दैट टाइम गवर्नमेंट नीड मनी, public expenditure always increase. So in war period, or we can say in an emergency period, public expenditure always increase. So as public expenditure increase, then government have to increase tax rate as well as tax structure also, because if tax will increase, then government will generate more and more revenue. If they will generate more and more revenue, so they can meet increase expenditure. So this is known as displacement effect. So displacement effect का मतलब होता है कि whenever एमरजेंसी पीरियड टेक प्लेस इन आवर कंट्री, सो गवर्नमेंट को बहुत एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, एंड टू मीट दैट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट इंक्रीज टैक्स. सो जितना टैक्स बढ़ेगा उतना रेवेन्यू इंक्रीज होगा, जितना रेवेन्यू इंक्रीज होगा उतना गवर्नमेंट खर्चा कर पाएगी. फॉर एग्जांपल, नाउ डेज पेंडेमिक पीरियड इज गोइंग ऑन. सो टू डील विथ पेंडेमिक पीरियड गवर्नमेंट रिक्वायर्ड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, मतलब गवर्नमेंट को खर्चा ज़्यादा करना पड़ेगा. इफ़ गवर्नमेंट हैव टू डू मोर एक्सपेंडिचर, देन गवर्नमेंट हैज़ टू इंक्रीज tax also. So this is known as displacement effect. So displacement effect का मतलब होता है earlier lower tax and public expenditure displaced by new higher टैक्स एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर. मतलब पहले का जो कम टैक्स और पब्लिक एक्सपेंडिचर था, वो किसने डिस्प्लेस किया? आज का न्यू हायर टैक्स एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर. सो अर्लियर लोअर टैक्स public expenditure displaced by a new higher tax and public expenditure. Number two is tax tolerance and inspection. Okay,
now suppose war is over, so after war the tax rate and the tax structure will be remain same. Now people used to accept the burden. Now war is over, now emergency period is over, but the tax rate and the structure will be remain same, and people used to accept the burden, they used to pay that burden. So this is called tax tolerance. बट अभी जैसे गवर्नमेंट ने टैक्स तो बढ़ा दिया है, देन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई. इफ़ गवर्नमेंट इंक्रीज टैक्स एंड दे कैप दैट टैक्स पोजीशन एज इट इज़, then those who are paying tax they also observing government. मतलब सपोज कि गवर्नमेंट ने हम पर टैक्स बढ़ा दिया है, तो गवर्नमेंट अभी वो टैक्स एज इट इज़ रखेगी. तो जो हम टैक्स पेयर हैं वी विल ऑल्सो ऑब्जर्व कि नाउ व्हाट नेक्स्ट गवर्नमेंट विल डू फॉर आवर वेलफेयर. सो बोथ द गवर्नमेंट एंड द टैक्स पेयर विल इवेल्यूएट द सिचुएशन. दिस इज नोन एज इंस्पेक्शन इफेक्ट. सो सेकेंड पॉइंट टैक्स टॉलरेंस. टॉलरेंस का मतलब होता है सहन करना. टैक्स टॉलरेंस एंड इंस्पेक्शन इफेक्ट का मतलब होता है ना वॉर इज़ ओवर बट द टैक्स रेट एंड द टैक्स स्ट्रक्चर विल बी रिमेन एज इट इज़, और लोग उस टैक्स को पे करने के लिए यूज टू हो गए. दैट इज़ कॉल्ड टैक्स टॉलरेंस. मतलब अभी लोग वो टैक्स रेट को सहन कर रहे हैं. फिर अगर लोग टैक्स भर रहे हैं तो लोग भी ऑब्जर्व करेंगे कि व्हाट गवर्नमेंट नेक्स्ट विल डू फॉर आवर वेलफेयर. दैट इज़ कॉल्ड इंस्पेक्शन इफेक्ट. Next is concentration effect. What is concentration effect? The displacement effect and increasing tax tolerance lead to greater concentration of economic activity in the hand of government. अभी displacement effect हो गया. Displacement effect means earlier lower tax and public expenditure displaced by new higher tax and public expenditure. So due to displacement effect and due to tax tolerance now more and more responsibility increase in the hand of government. मतलब गवर्नमेंट ने टैक्स तो बढ़ा दिया और गवर्नमेंट ने वो टैक्स कंटिन्यू रखा. सो गवर्नमेंट के हाथ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है. सो व्हाट गवर्नमेंट विल डू टू गेट द ट्रस्ट फ्रॉम पीपल. मतलब लोगों का विश्वास जीतने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी. सो सेंट्रल गवर्नमेंट विल टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन देयर हैंड एंड दे विल रिमूव द रोल ऑफ स्टेट एज वेल एज लोकल गवर्नमेंट. दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट. सो वाइजमैन एंड पिकॉक हाइपोथेसिस ये कहना चाहता है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑलवेज इंक्रीज इन अ स्टेप लाइक मैनर. फॉर एग्जांपल पहला स्टेप था कि एमरजेंसी पीरियड आया तो टैक्स बढ़ गया. सेकेंड स्टेप था टैक्स टॉलरेंस, दैट इज़ कि वो टैक्स जो बढ़ा है उसे एज इट इज़ रखा है. थर्ड स्टेप था कि जो टैक्स इंक्रीज़ हुआ है उसे पूरा करने के लिए, और वी कैन से टू इंक्रीज वेलफेयर ऑफ पीपल, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में ले ली. सो टैक्स पब्लिक एक्सपेंडिचर कैसे इंक्रीज हुआ? स्टेप लाइक मैनर में. पहले जब वॉर पीरियड था तो गवर्नमेंट को पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज करने के लिए टैक्स बढ़ाना पड़ा. फिर उस टैक्स को एज इट इज़ रखा. फिर जिस टैक्स को एज इट इज़ रखा है उसे दिखाने के लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटी पे अलग अलग खर्चा करना स्टार्ट कर दिया. सो पिकॉक एंड वाइजमैन हाइपोथेसिस क्या बोलता है, और वी कैन से वाइजमैन एंड पिकॉक हाइपोथेसिस ये कहना चाहता है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर हमेशा एक स्टेप लाइक मैनर में इंक्रीज होता है. पब्लिक एक्सपेंडिचर कैन नॉट इंक्रीज कंटिन्यूसली एंड स्मूथली. पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑलवेज फॉलो अ स्टेप, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप. सो इन दिस वे पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज इन अ स्टेप लाइक manner. So student, please go through the entire video. It will definitely help you, and write as it is in your notebook, so it will definitely help you to get a good mark. Thank you so much. God bless you.